السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی۔ پاکستان کی تاریخ کے 12ویں جنرل الیکشن میں عوام کو اپنے ووٹ کے استعمال کے تحت اپنے نمائندے قومی اور صوبائی اسمبلی میں بھیجنے کا موقع ملا ہے۔ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 79 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے کل 855 حلقوں پر 17,758 امیدواروں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے 1 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں سمیت 4 انتخابی حلقوں میں امیدواروں کے انتقال کی وجہ سے پولنگ ملتوی کی گئی ہے۔ ان میں قومی اسمبلی کا حلقہ NA 8 باجوڑ، جبکہ خیبر پختونخوا کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ 22 باجوڑ، KPK کا ہی حلقہ نمبر 91 کوہاٹ، اور جبکہ پنجاب کا حلقہ 266 رحیم یار خان شامل۔ ناظرین، فافن کی رپورٹ کے مطابق 12 کروڑ 79 لاکھ ووٹرز میں سے 6 کروڑ ووٹرز نے انتخابی عمل میں حصہ لیا اور اپنے ووٹ کاسٹ کیے، یعنی ووٹ کا استعمال۔ اب ہم آتے ہیں اس تفصیل کی طرف جس کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کسی بھی پارٹی کے سادہ اکثریت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل حالات نے کیا کروٹ لی۔ ناظرین، 1918 کے جنرل الیکشن کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی تعداد 577 تھی۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹنگ ڈے کے بعد 14 روز میں الیکشنز کے حتمی اور سرکاری نتائج کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا پابند۔ آرٹیکل 91 کے تحت پولنگ ڈے کے 21ویں روز نئی قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ یاد رہے، صدر مملکت 21 روز سے قبل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتے۔ نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس گزشتہ سپیکر کی زیر صدارت ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے الیکٹڈ ممبرز حلف اٹھاتے ہیں۔ نئی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے روز سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب بھی عمل میں لایا۔ نئے سپیکر کے انتخاب کے بعد موجودہ سپیکر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 91 کی شق 4 کے تحت نئے وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کے کل اراکین کی اکثریت کے 51% ووٹوں سے کیا جائے۔ اس روح سے اگر دیکھا جائے، نئی قومی اسمبلی پاکستان کا 33واں وزیر اعظم منتخب کرے گی۔ وزیر اعظم کے امیدوار کو کم از کم 169 اراکین کی حمایت کی ضرورت، لیکن یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ یہ پاکستان کی کسی بھی پارٹی کے پاس سادہ اکثریت موجود نہیں ہے۔ اب اگر ہم قومی اسمبلی کی نشستوں کی بات کریں تو 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی کل نشستیں 577۔ خواتین کے لیے مخصوص 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستوں کو ملا کر اب قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئی۔ گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں اس تبدیلی کی ایک اہم وجہ قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انضمام۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا اور پھر اس کی 12 نشستیں کم کر کے 6 کر دی۔ وہ 6 نشستیں جو کوٹے سے منع کی گئیں، وہ خیبر پختونخوا کے قومی اسمبلی کے کوٹے میں ان کو شامل کر دیا۔ یوں خیبر پختونخوا کا قومی اسمبلی کا کوٹا 39 نشستوں سے بڑھ کر 45 تک پہنچ گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئی۔ قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 169 سیٹیں درکار ہوں گی۔ اب کون بنے گا پاکستان کا وزیر اعظم؟ میاں محمد نواز شریف نے خود کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے پیش کر دیا، جبکہ جناب محترم آصف زرداری صاحب، جنہیں سیاسی پنڈت پاکستانی سیاست کا بابا بھی کہتے ہیں، شدید خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بلاول بھٹو نے الیکشن کمپین کے دوران پاکستان مسلم لیگ کو اپنے تیروں کی زد پہ رکھا اور کھلم کھلا اعلان کیا کہ وہ
अपने आप को पाकिस्तान के वजीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से अवाम के सामने पेश कर। उन्होंने अपने पार्टी मंशूर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 गुना इजाफे की नवीद भी सुनाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे वादे भी किए हैं जैसे एक आम आदमी की जिंदगी में इनकलाब या नुमाया तब्दीली। मगर वजीर आज़म नवाज शरीफ इस बात की बार बार तकरार कर रहे हैं कि उन्हें कभी भी पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका नहीं दिया गया। हर मर्तबा किसी न किसी वजह से उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया या ख़त्म। इसका इल्ज़ाम कभी वो किसी सरकारी इदारे पर डालते हैं और कभी वो इसकी वजह अदलिया को करार। वजह कुछ भी हो, लेकिन सच्ची बात तो ये है, इंडिपेंडेंट की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों की तादाद इन दोनों सियासी जमातों की अक्सरियत से ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक अब तक मौसूल होने वाले नतायज की रोशनी में अगर देखा जाए तो PTI के हिमायत याफ्ता 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 71 नशस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 53 कौमी असम्बली की सीटें जीती हैं, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 17 नशस्तें जीत चुकी है। अगर सूबा पंजाब की बात की जाए, सूबा पंजाब की 296 नशस्तों में से 295 नशस्तों के नतायज आ चुके हैं, जबकि एक हल्के PP 266 रहीम यार खान पर उसके एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से वहां पर पोलिंग मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता 126 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 131 नशस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 8 नशस्तें जीत चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया-उल हक शहीद ग्रुप ने भी एक नशस्त जीती है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी एक नशस्त पर कामयाबी हासिल की है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक नशस्त पर कामयाबी हासिल की है, मगर हाई कोर्ट ने उसके हतमी नोटिफिकेशन जारी होने पर हुक्म इम्तनाई जारी कर। सूबा सिंध की 30 नशस्तों के मुकम्मल नतायज भी जारी कर दिए गए। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 सीट्स के साथ सरफहरिस्त है। MQM पाकिस्तान ने 28 नशस्तें जीती हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं उनकी तादाद 14। जमात इस्लामी और GDA को सिंध असम्बली की 2 नशस्तों कामयाबी मिल सकी। KPK की पोजीशन कुछ इस तरह से है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 90 नशस्तें हासिल की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने 7 और मुस्लिम लीग नून ने 5 नशस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने 2 और अवामी नेशनल पार्टी ANP ने 1 नशस्त हासिल की है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 9 और JUIP ने 8 सीटें जीत ली। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4, अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी ने भी 2 नशस्तें जीत ली हैं, जबकि 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे हैं। नाज़रीन, अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत से बनाने में कामयाब नज़र आती है, जबकि पंजाब में नून लीग को हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक करना, यानी सूबा पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत इंतहाई दर्जे हद तक बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। बिलावल भुट्टो ने बाहैसियत वज़ीर ख़ारजा 16 महीनों तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो अपने आप को एक बेहतरीन और नौजवान वज़ीर आज़म के रूप में देख रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ किसी सूरत भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर जाने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान 3 नशस्तें हो चुकी हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दोनों जमातों के उम्मीदवारों की तरफ से दोनों जमातों पर तनकीद के तीर भी चलाए जा रहे हैं। अता तारड़ ने
पंजाब लाहौर में बिलावल भुट्टो को शिकस्त देने के बाद ये बयान जारी किया है कि मैंने लाहौर से एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन को भगा दिया। जबकि दूसरी तरफ मोहतरमा शीरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिलावल भुट्टो की शिकस्त को रिगिंग करार दिया है। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की एक दूसरे पर तनकीद के बावजूद शहबाज शरीफ की मोहतरम आसिफ जरदारी के साथ मुलाकातें मुस्बत माहौल में हुई हैं। बाद नज़र में देखा यह जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मुफाहमत करती है तो इसके बदले में वो क्या चाहे। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूरत में पाकिस्तान के सदर का ओहदा अपने पास थी, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि मुझे वज़ारत उज़्मा दे दी जाए और मुस्लिम लीग नून इस मरतबा सदारत के मज़े ले, यानी मोहतरम नवाज़ शरीफ इस मरतबा सदर पाकिस्तान के ओहदे का लुत्फ़। नाज़रीन, दुआ करें हमारे मुल्क की नुमाइंदगी सदारत या वज़ारत उज़्मा जिस भी पार्टी के पास हो, वो शख्सियत हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन साबित हो। जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए, चाहे उनकी तरजीहात कुछ भी हों, लेकिन पहली तरजीह इस्तेहकाम पाकिस्तान हो। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान में कायम होने वाली जमहूरी हुकूमतों को पूरे वक्त तक काम करने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक तहे दिल से पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक आवाम की खिदमत के लिए कमर बस्ता नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान में खुशहाली सिर्फ आप ख्याल ही समझी जा सकती। दुआ करें आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन साबित हो। हमारा वज़ीर आज़म जो भी हो वो किसी पार्टी का वज़ीर आज़म ना हो, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हकीकी नुमाइंदा हो। वो पाकिस्तानी अवाम के दुखों का मदावा करे। वो हुकूमत में आकर अपोजिशन के साथ किसी किस्म का ज़ाती अनाद न रखे, बल्कि वो अपोजिशन को भी अपने साथ लेकर इस तरह से चले कि मुल्क तरक्की की राह पर दौड़ पड़े। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काविश करने की कोशिश में मसरूफ़ रहूँ। अस्सलामु अलैकुम।